Hello and welcome back to another session of logical reasoning. This series is called Back to Basics, and today we are continuing our discussion on the topic of conclusions. In the very first class, or in the previous class on conclusions, we discussed the theoretical aspect of it. We discussed what exactly is a logical argument. We discussed what are the parts of a logical argument and how exactly do you identify conclusions. What is the meaning of conclusions? How do you approach questions on conclusions? Were few of the things which we discussed in the previous class. If you have not watched that video, make sure you watch that as well. But today, the agenda is to practice a few questions and put that theory to use. Let's understand how do we practically solve questions on conclusions in today's class. So the roadmap of today's class is going to be somewhat like me giving you a quick recap of the previous class, taking you through all the theory in 5-6 minutes, and then we'll be solving a few questions together. Okay, sounds good. Let's begin. Let's start our discussion for the day. So, first of all, when you talk about conclusions, the first thing is understanding how does it form a part of a logical argument. If you remember our discussion, a logical argument has two components, a premise and a conclusion. Well, actually three. There is assumptions as well. But for now, let's talk about these two components, which is a premise and a conclusion. What exactly is a premise? If you guys remember, I explained it to you that premise are simply statements which give you information. This information could be in terms of facts, this information could be in terms of numbers, this information could be in terms of narration. It could be anything, just anything which is giving you any sort of information which is leading you to prove a certain point, right? So we assume our premises to be true. हम मान के चलते हैं कि premises में जो लिखा है वो शत प्रति क्या होता है, शत प्रतिशत सच है, ठीक है, 100% ट्रू है. So point is कि premises lead you to the conclusion, but conclusion होता क्या है? Let's understand that very quickly. The conclusion is something which the author is trying to convince you of, which the author is trying to establish in an argument. जब हम एक logical argument देते हैं तो उसके पीछे एक purpose होता है. उसके पीछे purpose ये होता है कि आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो. तो क्या बात समझाना चाहते हो? The what of it is what conclusions are. अब जैसे if I take the example of, let's say, this phone, right? I have been using this phone from the past 2 years, is my first statement. My second statement is I am really satisfied with its camera quality. And the third statement is therefore I would recommend all my friends to buy this phone. So three statements here. First, I have been using this for 2 years. Second, I am satisfied with the camera quality. And third is therefore I am going to recommend it to all my friends. Can you guys identify what exactly were premises here and what was the conclusion? Conclusion क्या देना चाह रहा था मैं? Conclusion ये देना चाह रहा था कि मैं ये फोन अपने दोस्तों को क्यों recommend करूंगा, and उसके लिए मैंने आपको दो reasons दिए, और we could say दो premises दिए, दो information के bits दिए कि एक, मैं इसके कैमरा से खुश हूँ, I'm satisfied with it. Second is मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूँ. So it's not like I just got this yesterday. I'm speaking from experience. So using these two statements that I've been using it for 2 years and I love the camera quality, I'm able to justify, or I'm able to establish my conclusion that this is worth of you spending your money on, and this is something I would happily recommend. So ऑथर यहाँ पे कौन था? ऑथर मैं था. मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये फोन अच्छा है. वो कहने के लिए मेरा मेन मैसेज क्या था कि भाई इस फोन को मैं रिकमेंड करूंगा. एंड उस मैसेज को देने के लिए मेरे को दो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स लगे, विच वर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बीइंग सैटिस्फाइड विद इट. ठीक है. सो ऑथर कहना क्या चाह रहा है? व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से? What is the author's main point? Now, the next thing about conclusion is it is author's opinion, which may or may not be in the passage. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि conclusion exact words में लिखा हुआ हो आपके passage में या आपके paragraph में या आपके question में. Sometimes you might have to work your logic and understand it from the passage. काफी बार ऐसा होता है कि it is mentioned in the passage but in different words, in different form. But काफी बार ऐसा भी होता है कि it's not mentioned and you have to apply your CR skills, right? अब यहाँ पे very important point to note and remember while solving questions on conclusions, and not just conclusions, any logical reasoning question, is identifying some keywords, identifying some trigger words. What are these words? Words like therefore, words like thus, words like hence, words like because, words like henceforth, वर्ड्स लाइक सिंस. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि अब ठीक है,
कुछ नया आने वाला है, अब कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, या तो वो हमें नया प्रेमिस मिलेगा या हमें नया कंक्लूजन मिलेगा। बट ये वाले जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, देयर फोर, दस, हेंस, हेंस फोर्थ, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि एक कंक्लूजन आने वाला है। These are followed by a conclusion, or you could say these words precede a conclusion. For example, you guys remember the first example I gave you in the previous class, that I study every day for the CLAT exam. Therefore, I have a better chance of cracking it. अब यहाँ पे therefore के बाद आया मेरा conclusion, I have a better chance of cracking it. मेरा premise क्या था? I study every day for the CLAT exam. तो मेरा जो premise, अगर उसको मैं सच मानूं कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, उससे मुझे क्या पता चलता है? उससे मेरा मेन पॉइंट एस्टैब्लिश होता है कि मेरी क्लैट में अच्छी रैंक आएगी। समझे आप लोग? So your premise is connected to your conclusion. Your premise supports your conclusion. Your premise helps you establish your conclusion. And conclusion is the main thing which you are trying to say. It's as simple as that. ठीक है, कुछ इसमें complicated नहीं है। तो ये अगर आपको words दिखते हैं, therefore, thus, hence, consequently, as a result, ये सारे words आप identify करो and समझो कि इसके बाद conclusion आने वाला है। क्योंकि इन words का मतलब क्या होता है? therefore मतलब इसलिए, thus मतलब इसके बाद, hence मतलब इस वजह से, right? So मैं रोज क्लैट की पढ़ाई करता हूँ, इसीलिए मेरा क्रैक करने का चांस ज्यादा है ना? इसीलिए इज देयरफॉर, एंड दैट डिनोट्स अ कंक्लूजन। आई होप आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस क्वाइट वेल। आगे चलते हैं और समझते हैं कंक्लूजन ढूंढना कैसे है एक पैसेज में से, एक क्वेश्चन में से। सबसे पहले समझना है कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन इज समथिंग विच इज ऑथर्स ओपिनियन, जो आप डिराइव करते हो स्टेटमेंट से, प्रेमिसेस से। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि एक पैसेज में या एक क्वेश्चन में एक ही कंक्लूजन हो, उसमें एक से ज्यादा भी कंक्लूजन हो सकते हैं। हमें कौन सा बताना है? हमें वो बताना है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन करता है, जो हमारे क्वेश्चन के साथ अलाइन करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, हमें स्पेसिफिक वाला कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज डोंट मेक एनी असम्पशंस। अपने जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि ये ऐसा होता है, दुनियादारी में चीजें ऐसे होती हैं, रियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे होती हैं, वो सब भूल जाओ। रियल वर्ल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन्हीं गिवन फैक्ट्स की जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बियॉन्ड आपको अपनी अकल नहीं लगानी। अकल सिर्फ लगानी है कॉन्सेप्ट को समझने में, एंड जो गाइडलाइन है, मतलब जो तरीका है सॉल्व करने का, उसको समझने में। अब देयर कैन बी मोर देन वन वेज। मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो मुझे तरीका ठीक लगता है, एंड जो विच हैज वर्क फॉर मी एज वेल एज हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको भी मैंने मेंटोर किया है। तो दिस वर्क्स फॉर पीपल एंड दिस माइट वर्क फॉर यू एज वेल। आई एम नॉट सेइंग माय मेथड इज द बेस्ट मेथड, बट आई बिलीव दैट माय मेथड इज वन ऑफ द मेथड व्हिच डेफिनेटली वर्क्स। ठीक है, चलो, तो यूज ओनली गिवन डेटा टू आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब अगर मेरे को आपको 5 स्टेप एक प्रोसेस देना हो, एक चेकलिस्ट देनी हो कि कंक्लूजन का क्वेश्चन में ये 1 2 3 4 5 चीजें करनी है, तो दिस इज दैट चेकलिस्ट। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग कि आपका प्रेमिस क्या है एंड व्हाट इज इट लीडिंग यू टू। आइडेंटिफाइंग द प्रेमिस एंड कंक्लूजन फर्स्ट इन द आर्ग्यूमेंट। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको समझ आ गया कि ये पॉसिबल कंक्लूजन लग रहा है, देन नैरो डाउन करो उसको, देखो वेदर इट्स aligned with the scope of the question, with the context of the question or not। जो मैं आपको बता रहा था कि एक से ज्यादा कंक्लूजन हो सकते हैं, आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन के स्कोप में कौन सा वाला लाइक करता है। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेटिंग योर जेनेरिक एंड वेग कंक्लूजन्स, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ब्रॉड बात कर रहे हैं, बहुत ही दूर दराज की बात हो रही है, बहुत ही रैंडम बात हो रही है, वो डेफिनेटली आपके सही कंक्लूजन नहीं होंगे। You have to focus on the specific ones, focus on specific conclusions, and lastly filter out the extreme conclusions or the extreme options। अब extreme options कैसे पता चलते हैं? extreme words से पता चलते हैं। extreme words क्या होते हैं? words like never, words like only, words like always। so these are words जो एक ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सट्रीम बना देते हैं। अब आप पूछो कैसे एक्सट्रीम बना देते हैं, तो अगर हम अपना वही क्लैट वाला एग्जांपल लें कि I study every day for the CLAT exam, therefore only I would be able to crack it। क्या ये एक लॉजिकली वैलिड कंक्लूजन लग रहा है कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ इसलिए सिर्फ मैं ही क्रैक कर पाऊँ? आपको पता है और कितने लोग रोज पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं पता। आपको पता है कितने लोग पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं 3 4, इसलिए उसको कम पढ़ाई की जरूरत है, वो 2 दिन में एक बार भी पढ़ाई करे तो निकाल सकता है? यू नो दैट? नो, यू डोंट नो दैट। हाउ आर यू गोइंग टू अज्यूम कि सिर्फ आप क्योंकि रोज पढ़ाई कर रहे हो आप ही निकालोगे? दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आई स्टडी एवरी डे फॉर द क्लैट एग्जाम, देयरफॉर आई विल ऑलवेज क्रैक इट, या फिर डेफिनेटली क्रैक इट। ये अगेन एक एक्सट्रीम कंक्लूजन हो गया। देन अगर आप
नेवर ले लो कि आई स्टडी एवरीडे फॉर द क्लैट एग्जाम, देयरफॉर आई वुड नेवर फेल इन द क्लैट एग्जाम। आप उस दिन तबीयत खराब हो गई, सर दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, फलाना ढिमका, you cannot say that you would never fail in the exam. That is a very extreme conclusion to make. You can say there is less probability of you failing, there is higher probability of you succeeding, but never, only, always, ये वाले extreme options से हम थोड़ा सा दूर रहेंगे। 99% केसेस में these are incorrect। ठीक है, जब आप ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो एक क्वेश्चन में, यू आर इजिली एबल टू एलिमिनेट यूजुअली 1 या 2, समटाइम्स इवन 3 ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। तो अगर आप 2 एलिमिनेट कर लेते हो ऑप्शंस, तो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस, उसमें आपको लगाना है आपका दिमाग। ठीक है, चलो, तो ये तो थी पूरी थ्योरी की कहानी जो हमने पिछली क्लास में भी देखी थी। आज एक बार फिर से हमने रिवीजन कर लिया, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक। अगली क्लास में हम सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही फिर से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको रिकैप दे दिया। अब ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था कि ओडीआई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया ने बनाए 400 रन, 320 रन बनाए पेसर्स ने। पहला कंक्लूजन था 80% टीम में पेसर्स है। वी डोंट नो, वी कांट कंक्लूड दैट। ओपनिंग बैट्समैन पेसर्स थे, हमें नहीं पता किसने रन बनाए, ओपनर्स ने बनाए, मिडिल ऑर्डर ने बनाए, लोअर ऑर्डर कैन नॉट से। सो दोनों कंक्लूजन गलत, तो आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था कि सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं एग्जीबिशन में, कोई भी बिना आर्ट नॉलेज के अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। एंड दूसरा, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिए गए 2। ऑल इनवाइटेड आर्टिस्ट इन द कंपटीशन को आर्ट अच्छे से आती है, अगर वो इनवाइटेड आर्टिस्ट हैं तो उनको आर्ट आती है, तो दिस इज अ करेक्ट कंक्लूजन। Those who do not have good art knowledge are not invited to the exhibition, ये भी करेक्ट कंक्लूजन है। सो बोथ वर करेक्ट हियर। ठीक है, धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको, बट इन द प्रीवियस वाला सेशन। सो अगर आपको इतनी जल्दी से नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो पे जाके इसको अच्छे से समझना। आज हम नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो लेट्स स्टार्ट। एक मैं आपको करके बताता हूँ एंड उसके बाद आप लोग बाकी के 2-3 क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे आज साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। पैसेज पढ़ते हैं। Each of many different human hormones can by itself raise the concentration of glucose in the blood. ठीक है, the reason for this is probably a metabolic quirk of the brain. To see this, consider that although most human cells can produce energy from fats and proteins, brain cells can only use glucose. Thus, if blood glucose level fall low, brain cells will rapidly starve, leading to unconsciousness and death. Okay. Which of the following most accurately expresses the main conclusion of the argument above? So argument है हमारा पूरा ये, हमें बताना है इसका मेन कंक्लूजन, यानी कि एक्चुअल में ऑथर लास्ट में एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहा है, प्रूफ क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। ईच ऑफ मेनी डिफरेंट ह्यूमन हार्मोन्स कैन बाय इटसेल्फ रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, पैसेज में मेंशन्ड है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट क्या ये हमारा मेन कंक्लूजन है? वी डोंट नो। Reason that many different hormones can each independently raise blood glucose levels is probably a metabolic quirk of the brain. ये भी पैसेज में मेंशन्ड है, ट्रू है स्टेटमेंट, बट क्या हमारा कंक्लूजन है ये? नहीं, probably not. We don't know. Although most human cells can produce energy from fats and proteins, brain cells can produce energy only from glucose. ये भी पैसेज में मेंशन्ड है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट क्या ये हमारा मेन कंक्लूजन है? We don't know. If blood glucose levels fall too low, then brain cells starve, resulting in loss of consciousness and death. क्या ये हमारा मेन कंक्लूजन है? ये भी पैसेज में मेंशन है। अब देखो यहाँ पे पता चक्कर क्या है, चारों ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहीं से उठाए गए हैं और आपको बताना है कि कंक्लूजन क्या है। अब आप इसमें कंक्लूजन तब बता पाओगे जब आप इस क्लास को ध्यान से सुन रहे होगे और आपको ध्यान होगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे नजर रखनी है जिनके बाद कंक्लूजन आता है। क्या थे वो कीवर्ड्स? देयरफॉर, thus, henceforth, consequently, as a result। कहाँ पे दिख रहा है आपको 10? जो 10 के बाद वाला स्टेटमेंट है वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। सो हियर आई कैन सी 10 इज मेंशन्ड हियर कि ये सारे फैक्ट्स हैं। देखो कि ह्यूमन हार्मोन्स जो हैं बन रहे हैं, मेटाबॉलिक क्वर्क है ब्रेन का, एनर्जी बन रही फैट प्रोटीन से, ब्रेन सेल ग्लूकोज यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या? तो उससे ये कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गए तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगे और इंसान भी अनकॉन्शियस हो जाएगा या मर जाएगा। दैट इज द मेन कंक्लूजन, राइट? सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर डी टू बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, इजी पीजी, कुछ टफ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोगों को मैं दूंगा 30 सेकेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से लेट्स सॉल्व इट। पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ।
ऑल्सो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक 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 कर दो जल्दी से। इस पे सब लोग, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, 100 200 300 जितने भी व्यूज आएंगे, आई वांट एटलीस्ट 20 30 40 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि दिस इज हेल्पिंग यू गाइज आउट, वरना क्या ही फायदा। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। Chalo, time's up. Let me solve this for you guys. The question says abolish taxes and real taxpayers would find that their disposable income have increased. Okay. Abolish taxes and public employees would find that their incomes have disappeared. तो अगर टैक्स हटा दिए जाए तो जो टैक्स देने वाले हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और अगर टैक्स हटा दिया जाए, पब्लिक एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी ही टैक्सेस की वजह से आती है, उनकी इनकम गायब हो जाएगी। Which of the following is a logical conclusion that depends on information in both of the statements above? Remember, you have to read the question very carefully. ऐसी क्या लॉजिकल कंक्लूजन है जो दोनों स्टेटमेंट्स के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है? Public offices should be abolished so that disposable incomes will rise. क्या पब्लिक ऑफिसेस एबॉलिश कर देने चाहिए ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए? इज दिस अ लॉजिकल कंक्लूजन जो हम डिराइव कर रहे हैं? नहीं। डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक ऑफिस अबॉलिश करने से किसकी बढ़ेगी? किसकी बढ़ेगी? रियल टैक्स पेयर्स की बढ़ेगी। तो हमें तो दोनों की बढ़ानी है, तो दिस डज नॉट सीम अप्रोप्रिएट। As a conclusion, only real taxpayers are those who would have more to spend if they did not pay taxes. असली टैक्स पेयर वही हैं जिनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे अगर वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, दिस सीम्स लाइक अ वैलिड कंक्लूजन, बट इज इट डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन इन बोथ द स्टेटमेंट्स? It is dependent on just this statement. It is not dependent on the second statement. The third conclusion is public employees are not real taxpayers. Okay. So यहाँ बात हुई है रियल टैक्स पेयर्स की, या यहाँ बात हुई है पब्लिक एम्प्लॉयज की। ये कह रहे हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयज रियल टैक्स पेयर्स नहीं है, वरना ये स्टेटमेंट सेंस नहीं बनाएगा ना। रियल टैक्स पेयर्स की इनकम बढ़ रही है हटाने से, एंड पब्लिक एम्प्लॉयज की गायब हो रही है टैक्स हटाने से। So this is a valid conclusion which is dependent on both of these statements, that public employees are not real taxpayers. So this seems appropriate to me. The last one is public employees' income should not be taxed since they come from taxes. Now, okay, should not be taxed, ये हम डिसाइड करें क्या? कि हमें कंक्लूड करना ही नहीं है कि हमें टैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो दिस इज अ वैलिड कंक्लूजन, बट दिस इज मोर ऑफ एन ओपिनियन दैट दिस शुड नॉट हैपन। दिस इज मोर ऑफ, यू कुड से, नो, इन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ थिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा ही नहीं, हमें तो कंक्लूजन पूछा है जो इन दोनों इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हो। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। सो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयज रियल टैक्स पेयर्स नहीं है। ओके, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। चलो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस वन। ठीक है, साथ में करते हैं इसको। मोस्ट लार्ज रिटेल स्टोर्स होल्ड सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, original idea of price reduction campaigns in January became popular when it was realized that sales of products were generally slowing down following the Christmas rush. तो क्रिसमस के टाइम जो है रश होता है, उसके बाद सेल्स कम हो जाती हैं अगर कोई इंसेंटिव ना हो, वर इट नॉट फॉर सम इंसेंटिव। द लैक ऑफ डिमांड कुड बी सॉल्व बाय सिंपल सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग प्राइसेस। प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज नाउ एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग मेजर डिपार्टमेंट स्टोर्स इन लार्ज अर्बन सेंटर्स टू हैव देयर जनवरी सेल्स बिगिन बिफोर क्रिसमस, sometime before the end of the calendar year. ठीक है, the idea behind this trend is to endeavor to sell the maximum amount of stock at profit, even if that may not be at the maximum profit. यानी कि मैक्सिमम माल बेच दिया जाए एट प्रॉफिट पे, यानी कि लेट्स से 100 यूनिट बेच दिया जाए एट
₹10 प्रॉफिट, भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन सामान जो है सारा सारा बिक जाए, क्योंकि आपका यहाँ लिखा है कि स्लो डाउन हो जाता है आपका सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर योर क्रिसमस रश एंड्स। ठीक है। Which of the following conclusions cannot be drawn from the above? So क्या conclude नहीं कर सकते हम? Incidence of early January sales results in lower holding of stocks with the corollary of lower stock holding cost. Okay, ठीक है। Demand is a function of price. As you lower price, demand increases. ये तो definitely conclude कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। Major stores seem to think that it makes sense to have January sales campaign pre-Christmas. ये भी हम conclude कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ बिकमिंग लेस पॉपुलर टू स्टार्ट द जनवरी सेल्स इन न्यू ईयर। हाँ, ये भी हमें मेंशन है कि भाई देखो, न्यू ईयर से, कैलेंडर ईयर से थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग जनवरी सेल्स, बिफोर क्रिसमस। सो इट इज़ बिकमिंग लेस पॉपुलर, दिस इज ऑल्सो वैलिड कंक्लूजन, ये भी गलत हो जाएगा। तो जस्ट बाय एलिमिनेशन यू कैन रीच ऑप्शन ए, बट मैं लॉजिक से भी आपको समझाता हूँ ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि इंसिडेंस ऑफ अर्ली जनवरी सेल्स रिजल्ट्स इन लोअर होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स। यानी कि जब अर्ली जनवरी सेल्स आप लगाते हो ये वाली, तो उससे होता क्या है, स्टॉक्स जो है आपके कम हो जाते हैं विद द कॉरोलरी ऑफ लोअर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक होल्डिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है, यानी कि सामान रखने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी अगर आपको गोडाउन वगैरह नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक ही कम है। तो क्या हमें स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का आइडिया है कि जो है लोअर होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स के साथ स्टॉक्स होल्डिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी? क्या पता हमारा फिक्स्ड रेंट जाता हो उस गोडाउन का, जो कि जिसका डिपेंडेंसी स्टॉक्स पे ना हो। वी डोंट नो, सो वी कैनॉट रियली कंक्लूड दिस फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कि स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। इस वजह से दिस ऑल्सो बिकम्स द राइट आंसर। तो ये हो गया लॉजिक, मैंने आपको एलिमिनेशन से भी करके सिखा दिया एंड लॉजिक से भी करके सिखा दिया। आइडियली आपको दोनों चीजें चेक करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। The existing anti-duplication laws restricting the unauthorized duplication of video cassettes must be more effectively enforced. ठीक है, सो अनऑथराइज डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट ना बने वीडियो कैसेट, एंड जो करंट एंटी डुप्लीकेशन लॉज हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिवली इन्फोर्स किए जाए। इफेक्टिव एनफोर्समेंट वुड लीड टू ग्रेटर प्रॉफिट्स फॉर मोशन पिक्चर कंपनीज। अगर ज़्यादा अच्छे से इन्फोर्समेंट होगा तो पिक्चर कंपनीज जो वीडियो कैसेट बेचती है उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे क्योंकि पायरेसी नहीं होगी। दिस इंक्रीज इन रेवेन्यू वुड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मोर फिल्म्स ऑन वीडियो कैसेट। अगर ये रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे ज्यादा फिल्में वीडियो कैसेट पे आएंगी। दैट आउटकम अलोन मेक्स रिजिड एनफोर्समेंट अ बेनिफिट टू मूवी फैंस इवन दोज हु हैड प्रीवियसली सेव्ड ऑन चीपर इलीगल कॉपीज। तो यही सिर्फ ये आउटकम की ज्यादा फिल्में आएंगी, ये एक बेनिफिट है फैंस के लिए, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सस्ती इलीगल कॉपीज जो है पहले खरीदी है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन अबव इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट प्रॉपरली कंक्लूडेड? सबसे प्रॉपर कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Movie fans would be better served by a wider, costlier selection of films on video cassette than a narrower, cheaper selection. Okay, seems appropriate. Let's check the other options as well. Film and video production will decrease unless there is stricter enforcement of existing anti-duplication laws. Decrease की तो हमें नहीं पता कि फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा अगर इन्फोर्समेंट नहीं होगा। कम होने का तो हमारे पास नहीं है इंफॉर्मेशन, सो ये तो नहीं होगा। Stricter enforcement of anti-duplication laws will stimulate the motion picture companies to produce more films. Okay. This seems like appropriate as well. Lax enforcement, मतलब हल्का फुल्का enforcement, not proper enforcement of anti-duplication has that already exists has led to steady decrease in profitability of the film industry. ये profitability की तो हमें नहीं पता। ये पता है कि greater profits होंगे, लेकिन decline हो रहा है, decrease हो रहा है, ये हमें नहीं पता, ये नहीं बोल सकते। So between A and C, let's see which one is a more proper conclusion. ओके, सो यहाँ पे पैसेज एक बार देखते हैं कि इफेक्टिवली इन्फोर्स होने चाहिए, ग्रेटर प्रॉफिट्स होंगे, दिस इंक्रीज इन रेवेन्यू विल मीन मोर फिल्म्स ऑन वीडियो कैसेट। इस आउटकम की वजह से मूवी फैन को बेनिफिट होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ एंटी डुप्लीकेशन विल स्टिमुलेट द मोशन पिक्चर कंपनीज टू प्रोड्यूस मोर फिल्म्स। ठीक है, movie fans would be better served by a wider, costlier selection of films on video cassette than a narrower, cheaper selection.
Both of them seem to be proper conclusions. I'm just trying to evaluate कि कौन सा better है हमारे लिए. I'm inclining towards A because that seems to be, the conclusion of the whole thing coming to an end. कि पूरा ये सब करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये मूवी फैंस का बेनिफिट हो कि उनको ज़्यादा मूवीज मिले वीडियो कैसेट पे. इवन उनको भी जो सस्ती इलीगल कॉपीज खरीद रहे थे, तो वो चीज़ है. And C is saying in strict enforcement of laws will stimulate the motion picture companies to produce more films. ओके, गॉट इट, आई अंडरस्टूड कि सी सही आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है. और यहां क्या लिखा है? दैट इज द थिंग विच वी हैड टू कैच. कि पैसेज बात कर रहा है कि ज्यादा फिल्में वीडियो कैसेट पे रिलीज होंगी उस रेवेन्यू से. एंड ऑप्शन सी कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सिर्फ ज्यादा फिल्में आएंगी. ज्यादा फिल्मों से तो हमारा मतलब ही नहीं है, हमें वीडियो कैसेट पे चाहिए ना. एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स बेटर, कि दे वुड बी बेटर सर्व्ड with a wider, costlier selection of films on video cassette rather than a narrow, cheaper selection, right? So this makes option A more appropriate. So इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक वर्ड पे जो है आंसर चेंज हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द ऑप्शंस. मुझे भी यहाँ पे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए समझने में कि वाई सी इज रॉन्ग. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आई होप दिस क्लास वाज हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम कंक्लूजन्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में. वी विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ गुड कमेंट ऑन दिस एंड लाइक ऑन दिस, एंड इसको शेयर करो. दिस इज going to be helpful to all the aspirants. Do share it as much as possible, and I'll see you all in the next part of this video series. Till then, keep learning, keep preparing. Signing off. Bye bye, guys.